Hello, my love. So, welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel, we do astrology and tarot reading. As I have promised, every Saturday and Sunday, I'll come up with this pick a card readings. And today's reading is about your future self, your future life. How will you be 10 or 5 to 6 years down the line, what your life would look like and how will you look like, how will you grow as a person. Okay, so if you're new to my channel, don't forget to like, share and subscribe. If you've already subscribed, thank you my dear, that means a lot for me. अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ, ये सारे जनरल रीडिंग्स है, कभी कभी रेजोनेट करता है, कभी कभी नहीं करता है। चिंतित होने की कोई बात ही नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरी ईमेल आईडी दी रहती है। चीज़ों को अगर और गौर से देखनी है, जाननी है, क्लैरिटी पानी चाहिए या तो कोई क्वेश्चंस पूछनी है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें थ्रू माय ईमेल आईडी। ओके, एंड टुडेज रीडिंग विल हैव 3 कार्ड्स। जो नियम है कि 3 कार्ड्स होंगे, तीनों के ही टाइम स्टैम्प्स नीचे दी रहती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आपको कुछ नहीं करनी है, आपको कोई भी एक चूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे जानी है, टाइम स्टैम्प पे क्लिक करनी है और आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि ये रीडिंग्स आपके लिए कभी रेजोनेट करता है, कभी नहीं करता है। ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिए, एंटरटेनमेंट के रूप से लीजिए। अगर रेजोनेट करता है नीचे बताना मत भूलिएगा, दैट विल हेल्प द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। Another thing is that once I will hit 1K, I'm planning on doing free readings every month for that one person who will comment in most of my videos and will comment something nice and I'll be drawn to it. So जो भी कमेंट करेगा उनमें से जो भी कमेंट की तरफ मैं सबसे ज़्यादा ड्रॉन होंगी वो कमेंट I'll pick that comment and I will give a free reading to that person. Every month I'll do that once I hit 1K. Okay, so I hope you will support me in that and thank you. And so the choosing will be like these are 3 cards. So this is December, June and March. आपको कोई भी एक मंथ चूज़ करनी है अपनी मनपसंद। अगर आपको दिसंबर ज़्यादा पसंद है या तो दिसंबर के आसपास की जो वेदर रहती है वो ज़्यादा पसंद है तो वो चूज़ कीजिए। अगर जून की गर्माहट और उसके आसपास की जो वेदर है वो आपको पसंद है, बरसात एंड ऑल, चूज़ दैट। अगर आपको मार्च ज़्यादा पसंद है जहाँ पे थोड़ा सा विंटर का भी प्रभाव रहता है, उतना भी ठंडा नहीं रहता है, स्प्रिंग so you can choose that. So according to that, just choose whatever you are most drawn to. I always say take your time. एंड अगर आपके पसंद का ना भी हो वो मंथ पर आपको अचानक से उसकी तरफ एक खिंचा मतलब एक पुल महसूस होती है तो उस कार्ड को ही चूज़ कीजिए, दैट विल रेजोनेट द मोस्ट। एंड सो आई विल सी यू ऑन माई वीडियोज़ आई गेस। टेक केयर, बाय। हे पाल नंबर 1, अगर आप लोगों की पसंद की है दिसंबर या तो आपने अचानक से एक पुल महसूस किया है दिसंबर की तरफ तो ये रीडिंग आपके लिए है और हम लोग देखेंगे कार्ड्स क्या कहते हैं आप सभी के लिए। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। I'll show you the cards, okay? I hope you can see the cards. I'll try to make it visible for you guys. It's a little difficult to do so. This is your spirit guide message. These are your cards. I hope you can see it, right? So now we will do the reading step by step. So these are your tarot cards. Let's see what tarot is saying for today.
I'll have to get 2 more cards from the deck, that is the Queen of Cups and we got the 7 of Cups. Yes, 7 of Cups talks about choices in probably between you and your person. You could be a Taurus or a Virgo, or you could be a Pisces, Cancer or Scorpio, or the person you are dealing with is a Taurus or a Virgo. I definitely see there is some sort of a falling out of love, falling out of commitment sort of a situation. There is 7 of Pentacles over here. या तो आप वर्तमान में ऐसा कुछ झेल रहे हो, या तो आपके ज़िंदगी में अभी ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी का फॉलिंग आउट ऑफ कमिटमेंट, फॉलिंग आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, अ लव, ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि इन द फ्यूचर, लाइक विद इन 10 to 12 years, आपके लिए मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ आपका फॉलिंग आउट ऑफ लव टाइप ऑफ सिचुएशन हुआ था, वो व्यक्ति शायद आपको फिर से कुछ प्रपोजल दे. अभी ये प्रपोजल कमिटमेंट तक भी जा सकती है, और आई थिंक दैट टॉक्स अबाउट अ हायर कमिटमेंट. ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ट्रैवल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या तो आप दोनों डिस्टेंस में रह सकते हो, डिस्टेंस में स्टडी कर सकते हो अभी के लिए, एंड दैट्स वाई यू गाइज लाइक ड्रिफ्टेड अपार्ट. एंड मुझसे लगता है कि आपको बहुत बड़ी तरीके से एकदम से जिसे धक्का नहीं मिलता है इंसान को ज़िंदगी में, वैसा मिला है या तो मिला था. एंड इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ या तो आपके फाइनेंसेस और उनके बीच में आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ा था, या तो कोई एक फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा कुछ मतलब आप दोनों के बीच में अचानक से राइज हुआ जिसके लिए आप दोनों में दूरियां बढ़ गई, या तो किसी को अपने जॉब के लिए बाहर जाना पड़ा तो उसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, या तो आपने उनके ऊपर किसी और को चूज़ किया, इसलिए चीज़ें ब्रेकअप तक चली गई, एक जुदा सा हो गई चीज़ें. But with the 7 of Cups, yes, within like 10 to 12 years from now, I feel like you could be becoming a mother, or you could be becoming a father, doesn't matter. You will be a person of quality. आपको education में बहुत मतलब education मतलब हमेशा आपको डिग्री के हिसाब से मैं नहीं देखती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ से आपको इतने सारे टीचिंग्स मिली ना. This is High Priest. High Priest is someone who gets knowledge from his life experiences, books and etc. He's a knowledgeable person. So 10 to 12 years या तो 5 to 6 years down the line, आप एक विज्ञ व्यक्ति बन रहे हो, मतलब आपके अंदर वो सारे ज्ञान है, आप कमिटल बन रहे हो, आपको और लॉन्ग टर्म चीज़ें पसंद है, आपको शॉर्ट टर्म कोई चीज़ें पसंद नहीं है. ऐसा मैं देखती हूँ आपको ग्रो करते हुए. और भी एक चीज़ देखती हूँ कि आप में ममता, डजेंट मैटर व्हाट योर जेंडर इज़, आपकी जेंडर या तो सेक्सुअलिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती है. जो मैटर करती है कि आप इंसान के तौर पे कैसे बन रहे हो. आप इंसान के तौर पे बहुत दयालु बन रहे हो, लोगों को सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हो, उनका हेल्प करना, उनके लिए काम करना, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क काइंड ऑफ वाइब भी मैं देखती हूँ इस पाइल से. आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट सोशल वर्क में करोगे, आप अपना टाइम, प्यार, आप में बहुत प्यार है, ठीक है. वो प्यार पिछले टाइम पे मतलब शायद इस टाइम पे या तो पहले ये रीडिंग देखने से पहले आपने वो प्यार किसी दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट किया था जो आपके लिए सही नहीं रहा, आपके लिए अच्छा नहीं रहा. और जैसे कि मैं देखती हूँ कि अभी आप सीख रहे हो, जैसे कि ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी एज द ईयर्स आर पासिंग बाय, जैसे कि आपकी उम्र बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि इतना प्यार आपको कहाँ देनी है. शायद आप अभी सोच रहे होते हो कि इतना प्यार मुझे कहाँ देनी है. अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए हो कि हाँ, ये प्यार मैं दुनिया में बांटती हूँ, ये प्यार मैं लोगों में बांटती हूँ. लेट्स सी क्या होता है कि आप अपना लव सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके सराउंडिंग्स में भी देते हो. शायद आपको बच्चे भी बहुत पसंद हो, उनके लिए कुछ करते हो, या तो जो ओल्ड एज पीपल है, दोज हु आर नॉट एट द लेवल ऑफ आस, जो लोग हम लोगों के जैसे इम्यून नहीं है, हम लोगों के जैसे जिसके पास छत्ता नहीं है खाने की, छत्ता नहीं है रहने की, खाने के लिए 2 रोटियां नहीं मिलती है, मतलब दोज पीपल हु आर लाइक नॉट लिविंग अ लाइफ of abundance and not living a life of satisfaction.
you know, those people who are being, you know, sabotaged to some extent in our society, the unprivileged people, आप उनसे उनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होगे। आपको कोई एक बड़ा सा अथॉरिटी मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हो, या तो कोई ऐसा कंपनी में काम कर दो जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रमोशन चाहिए, आप हायर अथॉरिटी में जाना चाहते हो, तो मैं ये डेफिनेटली देखती हूँ कि आप में ये पूरे, मतलब आप कैंसरियन भी हो सकते हो वैसे तो, आपके अंदर वो सारे यू नो क्वालिटीज़ है। एंड आप 5 to 6 years down the line, या तो how many years in your future, I see you getting that position where you will be like the, you know, who will be commanding to people. You are the boss over here, not like a boss. It's like more of like a teaching. When you will talk to people, it will be like preaching. मतलब आप जब भी बात करते हो, आप सिर्फ बात नहीं करते हो, कुछ ना कुछ प्रीच करते हो। आपके बातों के माध्यम से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। आपकी बातें बहुत मायने रखेगी, वो आपके काम के जगह में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो। और मैं आपको ऐसा भी एक व्यक्ति देखती हूँ कि आपके लिए पैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नो मैटर आपके पास कितना कम फाइनेंसेस है, आपके पास अगर 10 रुपया होगा तो आप, जो गरीब इंसान है, उनको शायद 9 रुपया देने में भी हर्ज ना करे। ऐसा एक व्यक्ति में आप रूपांतरित हो रहे हो, मेटामॉर्फोस हो रहे हो। पर यस, आपको थोड़े थोड़े टाइम टू टाइम, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए टाइम टू टाइम आपको कन्फ्यूजन्स होते रहते हैं। शायद 5 to 6 years डाउन द लाइन आपको कहीं पर ट्रैवल करके जाना पड़े, वो अपने काम के लिए हो या तो किसी और वजह से हो। आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली से शायद यू नो जुदा रहना पड़े कुछ दिनों के लिए, क्योंकि या तो आप कहीं और जाके सेटल हो रहे हो या तो कहीं और जाके रह रहे हो, दैट इज़ अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। एंड यू डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन पीपल, यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आप में बहुत धैर्य है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए। कोई होता है कि हाँ मैंने अभी किया, अभी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको धैर्य का मतलब, आपको पेशेंस का मतलब पता है, उसका इम्पोर्टेंस पता है, जो आप डेली लाइफ में काम में लगाते हो। यू वर्क फॉर अदर्स नॉट फॉर द मनी, यू वर्क, मतलब आपके जो भी काम है आप सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते हो। आपके लिए पैसे उतने मायने नहीं रखती है जितना कि आपका खुद का सेटिस्फेक्शन मायने रखता है, जितना कि किसी दूसरे का हंसी आपके लिए मायने रखता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप ऑफ पर्सन हो, मतलब जनहित में जो लोग काम नहीं करते हैं, प्रो सोशल टाइप ऑफ पर्सन, लाइक very helping towards others. I also see a lot of you know Cancerian qualities, nurturing, mother like, you know, those who take care of others. आप किसी ऐसे काम से भी you know रिलेटेड हो सकते हो जहाँ पे किसी दूसरे को, किसी पीड़ित को आपको हेल्प करना पड़े, किसी पीड़ित को आपको सहायता करना पड़े। ऐसा कुछ एक आपका प्रोफेशन भी हो सकता है जिसके लिए आपको बाहर शायद मूव भी करना पड़े। ओके, एंड यस, यू आर लिटिल इंट्रोवर्ट, या तो आप अभी हो या तो फ्यूचर में भी इंट्रोवर्ट रहोगे। आप अपने पेन, अपनी दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आप खुद, मतलब आप ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हो कि या इफ़ यू आर फीलिंग बैड, इफ़ यू आर फीलिंग नॉट सो गुड, अगर आपको ठीक नहीं फील हो रही है, आपको ठीक अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? शायद अपने आप से बैठे थोड़ा सा यू नो कॉफ़ी पी लिया, थोड़ा सा वाइन, वट एवर इट इज़ यू लाइक, थोड़ा सा बुक्स पढ़ना, थोड़ा सा यू नो एस्थेटिक टाइप ऑफ, ऐसे ही बारिश को देख लेना, ऐसी चीज़ें आपको पसंद है। जैसे चीज़ें, मतलब लोगों को पार्टी करना पसंद है, लोगों को शॉपिंग करना पसंद है, पर आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती है, क्योंकि आपको ज़िंदगी का मतलब बहुत तौर से पता है। आपको बचपन से बहुत सारे लेसन्स मिली है। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा गुरु था, या तो आपके पिता हो सकते हैं, या तो कोई भी ऐसा टीचर था, गुरु था, जिन्होंने आपके अंदर में ये सारी क्वालिटीज़ डाली है। उनसे आपकी बहुत मेल हो सकती है, बहुत यू नो आप दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। एंड योर लाइफ, योर यू नो लाइफ स्टाइल इज़ वेरी लो की। नो मैटर आप कितना रोज़गार कर लेते हो, आप में शो ऑफ बात की चीज़ नहीं है कि हाँ मुझे जाके शो ऑफ करनी है, आई हैव टू पार्टी टू बी हैप्पी। You are more of a person like आप weekend में you will prefer to go for an orphanage and help others than to just go for a party and just you know dance. I am not saying partying and dancing is not good, even I like that, but आप कुछ दिनों, कुछ सालों में एक ऐसा व्यक्ति में रूपांतरित हो रहे हो कि आप में बहुत ज़्यादा करुणा, ममता, ये सारी चीज़ें रह जाएगी। ठीक है, that's what I see. Let's see the other cards.
Yes, seventh, a chakra, Archangel Uriel, that talks about helping people. She is an angel who helps people who are underprivileged, who are seeking help. और बहुत सारे लोग आपके राह भी देखेंगे, मतलब दे विल वेट फॉर योर हेल्प, दे नो यू आर द ओनली वन हु कैन हेल्प। यस, आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आप अपने करियर में, ये तो आपके लाइफ में आपको इतना सारा, आप पाइसिस भी हो सकते हो बाय द वे, या तो आप कोई एक पूर्णिमा में, या तो आपके लिए कोई भी मून का ट्रांजिशन, नो मैटर दैट इज़ वेनिंग मून और लाइक अ वैक्सिंग मून, ये मून का जो भी ट्रांजिशन है आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। आपके जो भी बड़े बड़े इंसिडेंट्स होंगे लाइफ के, वो ये मून के ट्रांजिशंस, फुल मून, न्यू मून, इसी के आसपास होते रहते हैं। आप में बहुत आपसे बातें करके इंसानों को सुकून फील होता है, ये मैं ज़रूर देखती हूँ। आप इतना ज़्यादा फिलैंथ्रोपिज्म, आप में इतना ज़्यादा कंपैशन है, इसलिए क्योंकि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बचपन, या तो आपके मिडिल आपके एडल्टहुड, या तो मिडिल एडल्टहुड, ऐसे मतलब बहुत स्ट्रगल से गई है। आपको बहुत सारे उठाव चढ़ाव देखने पड़े, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जाना पड़ा, और आपको पता है फाइनेंसेस एक्चुअली क्या है, एंड यू डोंट केयर फॉर दोज, बट यू आर अ वेरी लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि you are not a person who will like just overthink things, over want things. You are very, बोलते हैं ना कि आप बहुत ही स्वल्प में आप खुश रह सकते हो, बहुत कम में भी आप खुश रह सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी ने ही आपको ऐसा टीच किया है। आप बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे, आपकी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थी, चीज़ें क्लियर नहीं थी, पर एज यू विल मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू विल गेट द क्लैरिटी। आप में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या तो हो चुकी है, तो इसके लिए आपको पता है कि ज़िंदगी का मूल्य क्या है, एंड यू आर स्टार्टिंग टू रियलाइज इट, और यू विल बी स्टार्टिंग टू रियलाइज इट इन योर नियर फ्यूचर। क्लियर क्वार्ट्स, what is that you don't understand? Are you missing the point? It is the time to gain clarity and have a clear picture of what is truly going on within you and you're around. Decide that you want to see the biggest picture. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे कोई एक बड़ा डिसीजन मेकिंग है, आपको कोई एक डिसीजन मेक करना है, या तो कोई कमिटमेंट में आपको डिसीजन मेक करनी है, या तो आप अभी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, आपको कोई एक जॉब मिला है, या तो आपको बाहर मूव आउट करनी है, वही चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर मूव आउट करे कि नहीं करे, या तो वो रिलेशनशिप में रहे कि नहीं रहे। आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई एक बड़ा सा डिसीजन मेकिंग है दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज़ जस्ट आस्किंग यू टू काम डाउन एंड थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। आपके जो भी फ्यूचर सेल्फ है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो मुझे एक मैसेज दे रही है कि आपको इस टाइम पे थोड़ा सा धैर्य रख के आपको बड़ा पिक्चर का सोचना है, छोटे टाइम का नहीं। मतलब सपोज इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ 1-2 years फ्रॉम नाउ, डोंट थिंक ऑफ इट लाइक दैट, थिंक ऑफ इट इन अ बिगर पिक्चर। मतलब बृहद करके देखिए, चीज़ों को बड़ा करके देखिए, आपके 5-6 साल में क्या होगी। थोड़े मतलब अपने पर्सपेक्टिव्स को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखिए। और एक चीज़ आपको समझनी है कि आपके अंदर में क्या चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित हो, आप ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, सराउंडिंग्स में क्या होता है, क्योंकि आप बहुत केयरिंग एंड लविंग पर्सन हो। दैट इज़ वाई यू हैव दिस क्वालिटी ऑफ टॉकिंग लाइक थिंकिंग अबाउट अदर्स, ओके, एंड यू मुझे से भी लगता है आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ध्यान देते हो। पर आप जितना आगे जाओगे आप वैसा व्यक्ति नहीं रहोगे, आपको कोई नहीं जाएगा, मतलब आपको कुछ नहीं आ जाएगा कि कौन आपको क्या बता रहा है। बट फॉर नाउ यू आर दिस पर्सन who is in a cocoon stage and is going to be a butterfly in future, and that's what you are going through. You are going through, yes, of course, again this choices card is coming out. This is just a way of universe telling you, yes, you have to make a choice. I'm definitely sure like आपके लाइफ में इस टाइम पे कुछ ना कुछ चॉइस मेकिंग है, कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग है, और जो भी डिसीजन आप लोगे आप सबका सोच के मत लो, आप खुद के अंदर झांको, आप खुद के अंदर देखो आपको क्या चाहिए, यू सी, एंड गेट फोकस्ड एंड स्टे फोकस्ड। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, थोड़ा सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके उस चीज़ को लेके सोचिए,
बाकी सभी चीज़ को छोड़ के अपने आप को लेके सोचिए, अपने आप के फ्यूचर को लेके सोचिए, अपने आप के लिए एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखिए और उसके अंदर में सोचिए चीज़ों को। एंड मेडिटेट कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे चॉइसेस मेकिंग पे हम लोग ज़्यादातर टाइम बहुत हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे स्पिरिट्स मेरे थ्रू आपको यही कहना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में ना लें, क्योंकि आपके फ्यूचर में वो आपको अफेक्ट करने जा रही है। फ्यूचर में मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा भला चाहते हो। लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये रीडिंग देखते देखते भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, आप चॉइसेस लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करनी है, लाइफ में क्या होगी, आप इन सभी चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज्ड हो इस टाइम पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट आपको अपने अंदर अपने सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको ऐसा पैनिक्स आ रहे हैं। ट्राई टू फाइंड द गुड थिंग्स अबाउट लाइफ। जैसे कि ये पैंडेमिक चला गया, वी आर स्टिल गुड, वी आर स्टिल हेल्दी, आवर पेरेंट्स आर हेल्दी, एंड दैट इज़ समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट। ओके, अगर आपकी सिचुएशंस बहुत वर्स है, फिर भी वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे द रे ऑफ होप इज़ ऑलवेज देयर। सर्च फॉर इट, सर्च फॉर द गुड इन द सिचुएशन। अगर आप इस टाइम पे कुछ अच्छा ढूंढ पाते हो अपने सिचुएशन में, दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू गो फॉर द फ्यूचर, टू मेक मोर गुड थिंग्स फॉर द फ्यूचर। पर अगर आप होपलेस होके ऐसे अपसेट होके बैठे रहोगे अपने पुराने चीज़ों को लेके, अपने कन्फ्यूजन्स को लेके, दैट वोंट मेक अ गुड फ्यूचर फॉर यू। There is another way. Ask your unicorn to help you find it. Yes, there is another way. Choices, अगर आपको कोई एक चॉइस लेनी है और आपको लग रहा है कि आपको वो चॉइस मेक ही करनी है, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई और उपाय नहीं है, आपको यही चॉइस करनी है, आपको यही चूज़ करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास चॉइसेस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू कांट डू एनीथिंग, आपको यही करना होगा, आपकी ये डेस्टिनी है, तो स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं नो, देयर इज़ अनदर डोर फॉर यू दैट इज़ लीडिंग यू टू अ ग्रेट एंड वेरी नाइस फ्यूचर एंड मैजिक। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो चॉइसेस है, कभी कभी लाइफ में ये सिचुएशन जिसके थ्रू आप जा रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बटरफ्लाइज कभी बटरफ्लाइज नहीं बन पाते अगर वो लोग उस कुकून स्टेज से ना जाते, राइट? सो सेम विथ यू, you are going through all of this so that you can bloom into this magical butterfly, okay, for yourself, and there is a magic around you. आपके आस पास में, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारा मैजिक है। there is what was that dialogue, magic over logic or something. so yeah, तो आप अपने अंदर वो मैजिक देखिए, आपके अंदर जो मिरेकल्स है, एंड spirits are going to bring a lot of joy and excitement to your life. You are going to enjoy my love to the fullest in your near future. Also I see you could become someone in the spotlight. अब बहुत ज़्यादा लोगों के recognition में, लोगों की आंखों में आ जाओगे। अगर आप इस टाइम पे नहीं आ पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसे पुश करके रखे है, आप लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हो, तो नियर फ्यूचर में आप लाइमलाइट पे आओगे। आप अगर कुछ विश कर रहे हो तो एक्सपेक्ट कि वो सारे विशेस पूरी होने वाली है आपके लिए, और वो भी किसी एक मून रिलेटेड टाइम पे, ऑल्सो लाइक मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन क्लियर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, वो आपके अंदर में आप खुद अपने क्वेश्चंस को ढूंढ पाओगे मेडिटेशंस के थ्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक घर छोड़ने वाली भी बात है। अगर आप ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि ये घर यहाँ पे कंफर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करो कहीं सिचुएशन पे, आप उस कंफर्ट में ना रह के थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, तभी जाके आपको अपनी वो रोशन ज़िंदगी का वो लाइमलाइट सिचुएशन, वो फेम, वो नेम सभी मिलेंगे। नॉट बिकॉज यू वांट इट, आई सी क्लियरली, यू डोंट वांट टू बी famous, you don't want to seek attention, but you will get attention, my love, just because you have so much compassion, so much love for people, and so much of a philanthropist you are becoming in your near future. So that's what I see for you, pile number 1. That was a lovely reading, and I'll see you on my next video. Till then, take care, bye.
हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपकी पसंद की है जून और उसकी सराउंडिंग वेदर, या तो आपने अचानक से इसकी तरफ एक पुल महसूस की है, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. सो वी विल proceed with the cards. Let's see what is there. Show you the cards at first, okay? I hope you can see the cards properly. I'll try to make it a little vivid for you all. Okay. So we have got contract, King of Unicorns, prompting, hope, journey, cornucopia, contract, the burning tower, the justice, the eight of swords. Now we got the star, ace of swords. Okay. We also got the queen of pentacles, we got the ace of swords reversed, and now we got the eight of swords. Also we got the golden calcite. Okay, so these are your cards. Now we will move on with the reading. Hello, so as I said, this is your future reading. So let's see what messages do your future self has for you in this store. With the look of it, I feel like you are in some sort of a profession where you help people with their emergencies. आप इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसा कोई काम के साथ एंगेज हो सकते हो जहाँ पे आप लोगों को उनके इमरजेंसीज के टाइम पे हेल्प करते हो, उनके ज़रूरत पे, उनके बहुत जब ज़रूरत होती है उन टाइम पे हेल्प करते हो. इमरजेंसी, यू नो, SOS situations. You could be a healer of some sort, you could be an Aquarius or Libra, or you could be a Taurus, Virgo or Capricorn. Okay, we got eight of swords. We have repeating cards in this deck pile. So whenever I get repeating cards, it gives me an idea. जब भी मैं ऐसे repeating cards मुझे मिलते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूनिवर्स कोई एक बहुत important message देना चाहता है regarding your present situation. आपके फ्यूचर में कुछ सिचुएशंस पलटेंगी, उल्टेंगी, और वही सिचुएशंस यूनिवर्स को तो सब कुछ पता है. जैसे कि देयर इज़ ऑलवेज अ हायर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव और नॉट, दैट्स अप टू यू. बट अकॉर्डिंग टू मी, आवर फ्यूचर इज़ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड, एंड समटाइम्स दैट इज़ हाउ दे कन्वे द मैसेजेस टू यू, दैट अगर आपको अभी बहुत कुछ दबाव से फील हो रही है, आप अगर किसी चीज़ में स्टक हो, whether it is a relationship, I can clearly see that आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या तो आपको कोई तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है. आप बहुत एक मुश्किल टाइम के अंदर से जा रहे हो, ज़िंदगी के टाइम अभी. बट in future my love, in future I see you growing to a very independent, self-dependent and very loving, caring and nurturing person. You are a person who will make their own legacy. In a sense, आप ना किसी के ऊपर डिपेंड करना पसंद नहीं करोगे. आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप में बहुत एंड्योरेंस है, वो इमोशनल हो या तो काम के हिसाब से हो, एंड यू लव वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर फाइनेंसेस. बट अभी के लिए आप थोड़ा सा बिखरे हुए हो. चीज़ें आपके लाइफ में इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है, चीज़ें आपके लाइफ में इधर उधर जा रही है. आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है. जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी, जो चीज़ें आपको पता थी, वो चीज़ें अभी मतलब जानी हुई चीज़ें आपको अनजान लगने लगी है इस टाइम पे. रीसेंट टाइम्स पे आपके साथ कोई एक ऐसा हादसा, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप अभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो. कोई एक बड़ा सा प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, या तो मैं ऐसा हमेशा नहीं होगा, आपको याद में रखनी है जनरल रीडिंग से. या तो हो सकता है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा अटके हुए हो, या तो हो चुका है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप उसी को लेके बार ही बार सोच जा रहे हो. आप उस सिचुएशन से किसी भी तरह निकल नहीं पा रहे हो. आपके फ्यूचर सेल्फ आपको यही, आप या तो लॉयर भी हो सकते हो, मैं ये देखती हूँ, या तो
कोई भी लीगल लिटिगेशन रिलेटेड मैटर्स में भी आप रह सकते हो। आपके इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी घर में अगर कोई मामलात चल रही है, या तो आपके इन जनरली कोई भी मामलात चल रही है, डिवोर्स या तो कुछ भी, अच्छा हो या ख़राब हो, वो मामलात आपके फेवर में जाएगी इन फ्यूचर। आप उस मामलात से बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेंस हो सकती है या तो इमोशनल गेंस, रिसोर्सेस मिल सकती है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज़। आई फील लाइक अगर आपको किसी एक आंसर की तलाश है या तो आपको अभी कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई एक धारणा है ज़िंदगी के तरफ जो आप बहुत रिजिड हो उस एक धारणा को लेके। आपके अंदर कोई एक ऐसा सोच है जिसको लेके आप बहुत रिजिड हो, आप उस सोच को छोड़ना ही नहीं चाहते, आप उस सोच को पकड़े बैठे हो। यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट थॉट, यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन और अ काइंड ऑफ अ थिंकिंग पैटर्न दैट यू हैव। आपकी कोई एक पैटर्न है लाइफ की जो, या तो आपकी कोई एक अंडरस्टैंडिंग है, किसी चीज़ को आप ऐसे समझते हो और आप उसको वैसे ही समझना चाहते हो, आप कोई और पर्सपेक्टिव्स नहीं जानना चाहते। पर एज यू विल ग्रो ओल्ड, as the years will pass by, I can see you clearly just flipping the coin। मतलब सपोज अगर आपकी कोई एक बिलीफ है, आपकी कोई एक पैटर्न है जिसको आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहते और उसको पकड़ के आप बैठे हो, वो चीज़ इन फ्यूचर जाके आप बिल्कुल ही उसके विपरीत किसी चीज़ पे आप विश्वास रखोगे, या तो उसके विपरीत किसी चीज़ के तरफ आप ज़रूर जाओगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई एक रिजिड धारणा है या तो कोई एक कंजर्वेटिव सी आपकी नेचर है जहाँ पे आप यू वांट थिंग्स टू बी द सेम, बट माय डियर चेंज इज़ इनएविटेबल। चेंज तो आनी ही है। देखिए हम लोग जो बचपन पे थे, अगर हम लोग सारी ज़िंदगी वैसे ही रह जाते उसी साइज़ में, उसी इमोशनल स्टेट पे, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती, तब इतना कुछ नहीं हो पाता है ना। हम लोग बड़े होते हैं, चीज़ें बदलती है और बदलाव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आई थिंक दैट इज़ वॉट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर्स। आई फील लाइक आपको बदलाव से बहुत ज़्यादा डर है। आपको आपको लोगों को you are very afraid of losing people, you are very afraid of losing the comfort zone। आपको चीज़ें पसंद बदल जाना पसंद नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशंस आपकी अभी ऐसी है कि बहुत चीज़ें बदल रही है और वो चीज़ें आपके हाथ के बाहर जा रही है। पर इन सभी चीज़ों के बदलने से जो ज़्यादा बदलना इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी खुद की कुछ एक सोच, या तो कुछ एक पैटर्न, या तो कुछ एक बिलीव। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे लोग उस चीज़ को लेके बताते भी हैं कि ये जो तुम्हारा चीज़ है ये तुमको नहीं करना चाहिए, पर आप ना उसको पकड़े बैठे हो। आप आप खुद भी जानते हो शायद ये थिंकिंग पैटर्न या तो ये चीज़ ज़िंदगी का बहुत मेरे लिए हानिदायक है, पर आप उस चीज़ से कभी भी निकल नहीं पाते, उस थॉट प्रोसेस से कभी नहीं निकल पाते। वो एक पैटर्न बन चुका है आपका, या तो वो इंसान हो सकता है, या तो कोई हैबिट हो सकती है, या तो कोई just the way I said, it could be a school of thought, whatever it is। पर मैं इन फ्यूचर उसका पूरा रिवर्स इंसान देखती हूँ आपको, और मैं ये भी देखती हूँ आप आप पूरा ही बदल रहे हो। आप समय के साथ बहुत बदले हो और बदलोगे, नो मैटर इफ़ यू वांट इट और नॉट। आपको अगर नहीं भी जचता है बदलाव, पर आपकी ज़िंदगी में आनी है और ये बहुत पॉजिटिव बदलाव होने वाली है, ठीक है। क्योंकि ये जो बदलाव है ना, वो आपको क्लैरिटी देगी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में, जीवन की चीज़ों के बारे में, और आपको ज़्यादा समझ होगी चीज़ों के बारे में। अगर आपकी एक ऐसा कोई विश है जो आप अभी मांग रहे हो, या तो आपने कुछ एक प्लानिंग करके लिखा है अपने डायरी में, या तो कहीं पे भी अपने माइंड में, यू हैव सम प्लान्स एंड मोस्ट ऑफ देम विल कम ट्रू इन फ्यूचर। सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ विश, make it with make it with all your heart, with all your love, and with all the belief in the universe। Okay, so whenever you're making a wish, wholeheartedly make it। Okay, that's what I see with the star। Okay, it is telling you, this is a way that your future self is telling you, yeah, pile number 2,
make the wishes, make that a chart of or the list that you want to pursue in life, and those are going to come soon. मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंस में तो बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, पर आपके सिचुएशंस या तो हालात ऐसी है, या तो आपकी ये जो पैटर्न है ना कि आप चेंज पसंद नहीं करते, इसलिए आप थोड़ा सा स्टक हो जाते हो, अपने इंडिपेंडेंस को खो बैठते हो ना चाहते हुए भी। पर विद द लिब्रा एंड जस्टिस कार्ड, जो भी इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में वो इन फ्यूचर नहीं रहेगी। आप बहुत ग्रो और ग्लो करोगे। इनफैक्ट आप लोगों को उनके इमरजेंसीज के साथ हेल्प करोगे। किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक व्यक्ति को, या तो ग्रुप ऑफ पीपल को, या तो बहुत सारे लोग को आप जस्टिस दिलाने में हेल्प करोगे। उनको विचार दिलाने में आपकी एक बड़ी भूमिका रहेगी, वो किसी भी तौर पे हो। या तो गवर्नमेंट तरफ से हो सकता है, या तो आप एज ए साइकोलॉजिस्ट उनको हील करोगे, कोई भी, या तो मेडिसिन का आपका प्रोफेशन है, या तो आप लॉयर हो, जो भी आपका, या तो बिजनेस हो आपकी, पर या तो आप इन जनरली प्रोफेशन के बाहर जाके लोगों को विचार दिलाने में बहुत दिलचस्प रखते हो। बहुत आप में वो चीज़ है कि कोई अगर अनफेयर चीज़ हो रही है आपकी सराउंडिंग में, आप उसको झेल नहीं पाते हो। एनीथिंग दैट इज़ अनफेयर इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल टॉलरेट, ठीक है। पर जब आपके बारे में वो आ जाता है तो आप बहुत टॉलरेट कर लेते हो। दूसरों के बारे में आप कभी भी अनफेयर नहीं होते हो। दूसरों के साथ अनफेयर हो तो आप प्रोटेस्ट करते हो, पर अपने बारे में आप थोड़ा सा अनफेयर मान लेते हो, जिसके लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हो, इसलिए कभी कभी लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो आपको बहुत दुख देता है। पर वही एक नेचर इन फ्यूचर आपको बहुत सारे गुड कर्मास कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, जो ओवरऑल आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी। अगर आप इस टाइम पे किसी एक सच को लेके मतलब सच के तलाश में हो, आपको सच नहीं मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख रहे हो, आपको पता नहीं कि आपने जो चूज़ किया है वो आपके लिए ट्रुथफुल होगा कि नहीं, या फिर आपने जिसको चूज़ किया है वो आपके लिए ट्रुथफुल होगा कि नहीं, तो मैं कहूँगी ज़रूर होगा, नियर फ्यूचर में होगा। टेक इट सम टाइम। आप अगर हर बार में डिसीजंस लेते हो तो टेक सम टाइम, डोंट जस्ट मेक अ डिसीजन, डोंट रश थिंग्स। और मुझे लगता है आपको बहुत हड़बड़ी रहती है, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी ख़त्म करनी है, एंड यू आर अ गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन। आपको लाइफ में हमेशा कोई एक नया इम्तिहान चाहिए, कोई एक नया एग्ज़ाम चाहिए, एक नया पर्पस चाहिए, एंड उसी पर्पस में आप ढूंढते फिरते हो और कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। एक हो गया तो दूसरा हो गया तो तीसरा। तो मैं स्पिरिट्स आपको यही कहना चाहते हैं, आपके गोल्स इंपॉर्टेंट है, येस वी नीड टू सेट गोल्स, बट we need to take pauses as well from time to time for our mental health, right? और अपने एस्टेब्लिशमेंट्स को कभी भी किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। शायद बहुत लोग होंगे आपके चारों ओर जो आपको बोलेंगे हाँ देखो वो क्या कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरा नेबरहुड में क्या हो रहा है। नहीं, इट इज़ यू एंड योर सक्सेस, नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ बिग इट इज़, celebrate it, okay, because you deserve it, you did it by your own, okay. Let's see your oracle cards. Prompting call a friend। अगर अभी आप कुछ एक प्रॉब्लम के अंदर से जा रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपकी दोस्त ज़रूर हो सकता है, जो आपको इन सभी में हेल्प कर सकता है। अगर आपको थोड़ा सा झिझक हो रही है कि मैं कॉल करूँ कि नहीं करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ज़रूर कॉल कीजिए, एंड ही कुड हेल्प यू आउट। बट यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी सेंट अ फ्रेंड और विल सेंड अ फ्रेंड फॉर लाइफ हु विल हेल्प यू थ्रू ऑल ऑफ दिस, ओके। मतलब एक कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, वो फ्रेंड के तौर पर हो फिलहाल जो काज बता रहे, या तो किसी और तरफ से हो, वो इंसान आपके लिए हमेशा रहेगा। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगा आप उनको कॉल कर पाओगे। शायद उस व्यक्ति के पास बिल्ली और डॉग्स हो, या तो उनको डॉग्स बहुत पसंद है। ही कुड बी अ सोलमेट ऑफ योर्स हु विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू थ्रू आउट। एंड सोलमेट मतलब से मैं खाली प्रेम संबंधित रिलेशंस नहीं बताती हूँ, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है। बट वन ऑफ द साइंस दैट यू विल नो दिस पर्सन इज दैट दे विल लव dogs and cats and animals, and they will have this unmatchable connection with animals, okay? वो बहुत ज़्यादा एनिमल्स के साथ कनेक्टेड होंगे। ये जो भी व्यक्ति होगा, मेल हो या फीमेल हो,
but there will be a friend of you who will help you out throughout. Either he or she is already in your life, or they will be sent by universe in your life. Okay, hope, look with new eyes and create the change that awaits you. Yes, there is a big change coming. That's why the Tower card is here. मतलब टावर कैसी है ना, पता है, वो टॉर्नेडो नहीं होता है ऐसे एकदम से प्रलय सा आ जाता है, साइक्लोन सा आ जाता है ज़िंदगी में। पर साइक्लोन के बाद क्या होता है, आसमान के जो भी बादल थे वो सभी घट जाते हैं और क्लियर स्काई मिलता है हम लोग को, एकदम नीला आसमान, प्योर आसमान, राइट। एंड दैट्स व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। लाइक यस, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ रीज़न। यस, मे बी देयर इज़ अ स्टॉर्म अहेड, मे बी साइक्लोन होगा ज़िंदगी में, पर वो आपके जो भी डाउट्स है, जो भी आपकी जो भी क्लाउडी इमोशंस है, क्लाउडी थॉट्स है, अनक्लियर इमोशंस हैं, अनक्लियर सिचुएशंस है, उन सभी में क्लैरिटी लाने के लिए ये सिचुएशन आ रही है। साइक्लोन होता ही है ताकि रेनबो आ पाए। देखिए यहाँ पे टावर कार्ड है, यहाँ पे रेनबो है। सो इट इज़ जस्ट सेइंग दैट आफ्टर एवरी cyclone you see a rainbow. After every storm there is again this blue vast clear sky full of opportunities, full of birds chirping, full of 7 colors that represent 7 shades of life. Okay, so once this will happen to you, it will help you to change. Also butterflies are here. Butterfly itself signifies the change that is going to happen in your life. If something bad happened, if something left you cold, if something broke your heart or will break your heart, just keep strong, just be strong, keep your heart safe, because yeah, this happened for a reason. This happened to clear your sky. King of the unicorns, you are blessed with majesty, vision and power. Yes, you are blessed with all of those. You have the authority, you have that charismatic personality, you have everything. You are blessed, you are protected. Unicorns are here, universe is here, and every other thing is here to protect you. Okay, you are your own way and you are the best. Let's see what else is here. Journey. Yes, there is a journey that you are in. Cornucopia, there is a journey that is a little थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा आपको चीज़ें छोड़ के आनी पड़ेगी, आपको पुराने लोगों को, पुराने चिंताओं को, पुराने थॉट प्रोसेस को, पुराने सभी चीज़ को छोड़ के आनी पड़ेगी। यस, छोड़ के आनी पड़ेगी, वो टफ है। easier said than done, of course, but this thing will lead you to a beautiful gift of life change, abundance. You will be receiving this love and gift because you deserve it in your future. मैं in future आपको ऐसे भी देखती हूँ कि आपकी फ्रिज पूरा खाने से भरा हुई रहेगी, आपको ऐसे फाइनेंसेस को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा. एंड कॉन्ट्रैक्ट, यस, आई बेट मे बी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई लीगल सिचुएशन है, या तो आपके फैमिली में कोई लॉयर है, या तो आप खुद लॉयर हो, या तो लॉ रिलेटेड आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन ज़रूर है, या तो आप बिजनेस पार्टनर्स हो जहाँ पे लीगल वर्क्स रिलेटेड काम होते हैं, या तो जहाँ पे लीगल वर्क्स बहुत मैटर करते हैं, या तो लीगल वर्क्स इंक्लूड होते हैं. तो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर सकते हो किसी के साथ, या तो आपकी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है काम का इन फ्यूचर जो आपको बहुत सारे मनी, पैसे, लग्जरीज लाएंगे ज़िंदगी में इन फ्यूचर. एज फॉर फाइनेंसेस कंसर्न्ड, योर फ्यूचर लुक्स ग्रेट. Let's see what is there for the oracle messages. Do you feel like you are fulfilling your soul purpose? Do you know what your strengths are? It's time to become the person you are meant to be. Align yourself with a strong sense of self and actualize your full potential. Of course, आपको अपना life purpose अभी तक पता नहीं है, because that is for a reason. But you have a life purpose that you need to fulfill. And that life purpose will not only help you out but help several others out. So it's just a matter of time. You will find the purpose
एंड नो वन इज़ बॉर्न विदाउट अ पर्पस इन दिस लाइफ टाइम. आप अगर जन्म लिए हो तो आपको कोई एक काम समाप्त करके जानी है. आपके लिए वो काम भगवान रखे हुए हैं, एंड दैट विल हैपन, एंड दैट यू विल परफॉर्म इट विथ एक्सीलेंस, एंड it's just a matter of time when you will feel strong and in alignment with your soul. ठीक है, so this was your reading. It was a lovely reading, and I'll see you on my next video. Till then, take care. Bye. Hey, pile number 3, अगर आपको मार्च मंथ ज़्यादा पसंद है, या तो उस मंथ के आसपास के मंथ की जो वेदर है वो ज़्यादा पसंद है, या तो इन जनरली आपको अचानक से लगा कि आपको मार्च चूज़ करना चाहिए, तो ये रीडिंग आपके लिए है. तो हम देखेंगे आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं. थैंक यू. So let's see what is there. I'll show you the cards at first. Soul satisfaction, the silence. Okay, I adore the cards, you know, the pictures and everything. That's why I decided to show you guys, even so can you enjoy. Action, rest and rejuvenate, financial constraints. Okay, 3 of Swords. Ooh, Ace of Pentacles, 6 of Pentacles. I can see your story, my love. These are the tarot cards. Page of Pentacles, then we got the 4 of Swords, High Priestess, Leo, and 10 of Pentacles over here, right here. These are your cards. Now we will read. Okay, we will start with the tarot. So these are your tarot cards. So let me read. Recent times पे आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, आपकी दिल टूटी है. मैं यहाँ पे लियो एनर्जी देख सकती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड ऑल्सो आई सी पाइसिस ओवर हियर. Doesn't matter which sign. Also here we have the 4 of Swords that talks about rest and rejuvenation. I feel like you are exhausted. You are exhausted emotionally and as well as financially. Past few years, like I guess 3 to 4, 5 years, your childhood has been troubled. आपको बहुत सारे ups and downs से ज़िंदगी गुजारनी पड़ी. Your life has never been easy. It has always been hard. You had to show a lot of strength. And someone in your near past, like the recent past, broke your heart. Really broke your heart really bad that you went to this process of healing. आपको इतना मतलब अंदर से तोड़ा गया कि आपको कोई एक हीलिंग प्रोसेस के अंदर से यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम वर्ल्ड. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक आपने एकदम दुनिया से ही छुट्टी ले ली. आपने अपने आप को दुनिया से आइसोलेट करके रख दी. आप ऐसा हुआ, मुझे ऐसा सीन्स आ रही कि आप दिनों भर ऐसे ही लेटे रहे बिस्तर पे, सोफ़ा पे, विंडो पे तारते हुए. आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे, सोशलाइज नहीं होते थे, बैठे हुए थे. या तो ऐसा हुआ है या तो हो भी सकता है. Keep in mind these are general readings, okay? But I think this is regarding your love. आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव सिचुएशन में. वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको ऐसे कोल्ड छोड़ दिया. आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसने आपको चीट किया, या तो कोई भी सिचुएशन हुआ. All in all, it broke your heart so bad that you almost took a break from your work, from your education, whatever field you are in. You never मतलब आप बिल्कुल ही एकदम आइसोलेशन में चले गए. आप किसी के साथ बात नहीं करते थे, शायद अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं. आप दिनों भर घर से नहीं निकलते थे. बट आपकी लाइफ इतनी हार्ड गई है, मुझे समझ आती है. आपकी सिचुएशन बिल्कुल मुझे समझ आती है. पर आपने इतना धैर्य दिखाई, इतनी पावर दिखाई, इतनी स्ट्रेंथ दिखाई कि द 10 of Pentacles इज़ हियर. मनी,
commitment, abundance, vehicles, gifts, everything is here just because ये जो भी हार्ट ब्रेक है, आपकी जो भी लाइफ सिचुएशन है, जो आपको इतना पुश करना पड़ा आपको इतना ज़्यादा उस लाइफ सिचुएशन में, आपको इतनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ी, आपने इतना स्ट्रेंथ शो किया और आपने हमेशा ये बिलीव रखा कि येस आई एम गोना बी फाइन एंड आई कैन सी दैट no matter how bad the situations were, no matter how broke your heart was, no matter how broke you were financially, you always kept that faith inside of you that it will be fine someday. You always worked hard, you always literally showed your strength in every situation. You are the bravest. You showed your bravery to its bones, and that is why an offer has been made to you, or it will be made to you regarding your finances, okay? Or this could be a long term relationship that will bring you a lot of money and physical things and tangible things. But whatever it is, just because you showed bravery all through these years, this is what has been offered to you. क्योंकि आपने इतने सालों से इतना कुछ झेला and you showed your strength, आपको ये ऑफ़र मिल रही है. पहले तो ये ऑफ़र बहुत छोटा लग सकता है, या तो लग सकता है कि या दिस इज़ अ कैजुअल ऑफ़र, या तो आपको ऐसा लग सकता है या अगर जॉब हो कि हाँ मैं कुछ दिनों तक ये करूँगा या तो करूँगी, पर यही एक छोटा चीज़ आपको सालों के बाद सालों में ग्रो करते करते एक बड़ी कुछ जगह में जाएगी. It could be a company, it could be a legacy, it could be something new and innovative that no one ever did in your family, and that is bringing you a lot of wealth. In the beginning maybe you started from a scratch and the money was very little, but you started it anyway and you will start it anyway. अगर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी फ्यूचर में आपको कोई एक जॉब ऑफर मिले जो पहले तो बहुत ही मामूली लगेगा, बहुत कम लगेगा, बट as you will move ahead, it will give you lots of abundance because Ace of Pentacles, this too is here. आप एकदम एक से स्टार्ट करके 10 तक जा रहे हो. आप छोटे से इतना कम से स्टार्ट करके एकदम कंटेंट होते जा रहे हो. पहले जो भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे ना वो शायद एक से हो और आप उस चीज़ को अपने स्ट्रेंथ के द्वारा, अपने एंड्योरेंस के द्वारा, अपनी हार्डवर्क के द्वारा एक दर्जा तक लेके जाओगे, एक स्टैंडर्ड तक लेके जाओगे. वो आपको पैसा लाएगी, कमिटमेंट लाएगी, वॉट एवर इट इज़, इट विल ब्रिंग यू अ लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स. अगर आप कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के माध्यम में जा रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कोई इक्वल बैलेंस नहीं है, आप अगर जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, तो मैं बहुत जल्दी आपको एक ऑफ़र पाते हुए देखती हूँ. या तो ये कोई एक व्यक्ति है जो आपसे कुछ लॉन्ग टर्म मांगता है और वो भी आपको ये ऑफ़र कर सकती है. इट कुड बी लाइक अ मैरिज ऑफ़र दैट विल ओपन, मे बी एट फर्स्ट यू वोंट बी लाइक थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन सो मच, but later on it will bring you a lot of happiness and lot of commitment. Okay, it almost like a fortune after difficulty. खराब समय के बाद एक अच्छा समय होना, and you will literally fill the bag with all the gifts and the physical tangible things, all the material things, as well as the commitment, as well as the emotional balance that you will get in future, just because you showed your strength, you kept your intuition, you kept your third eye open, you kept your heart chakra open, you kept listening to your intuition, you kept showing strength in the situations that broke your heart, even though it was so tough to I can see it. It was so tough. It was like you used to cry and everything, but finally you will get it. You will get it, my dear, and I can see it. We will see the cards. डिलीट कर देते ना.
मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाला है। फिलहाल तो आप अभी चुप हो, यू आर वर्किंग हार्ड in silence and you are letting your success make the noise. That's the vibe that I get from these set of cards. You will do something in future that will satisfy your soul. You will do something that looks good with you, that is something that serves your soul purpose. ऐसा कुछ काम है आपके, ऐसा कुछ करोगे आप जो आपको बहुत सारी खुशियाँ लाएगी। देखिए क्या लिखा है, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। जो आपकी अंदर की जो स्पिरिट है, जिससे मतलब जो काम करके आपको सुकून मिलती है, वो काम आप कीजिए। आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर एंड द साइलेंस। आई फील लाइक यू आर अ वेरी पीस सीकिंग पर्सन। आप झमेले, कॉन्फ्लिक्ट, सभी चीज़ों से दूर रहते हो, या तो आप इन फ्यूचर ऐसा एक इंसान बनोगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद ही नहीं करते, और आप बहुत पीसफुल एक इंसान हो। आपकी तो चारों ओर की माहौल भी बहुत पीसफुल है। अगर आप रोते भी हो तो यू डोंट मेक नॉइज, यू हाइड योर टीयर्स। मे बी यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु विल गो टू वॉशरूम एंड क्राई इफ यू डोंट हैव अ रूम टू क्राई, बट सी वॉट इज देयर, be still, for all the answers lie in the silence. Yes, you never talk, you are alone. See this guy, I know you never talk to anyone about your problems, you keep that to yourself. आप अपना स्ट्रेंथ दिखाते हो सिचुएशंस में, आप अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन. I think this is about your love situation. You didn't say anything because you want the karma to speak for you, and I clearly see that. But as you will move forward, you will get that peaceful life with all the abundance you want in life, because you have been very mature. You are also very mature, that I clearly see. You will have a beautiful family and will enjoy a beautiful family time with them. Maybe you guys will go somewhere where there is like lakes and mountains, that I clearly see. Somewhere where it is like very soothing, a place like Kashmir or something, where there are nice streets and all these birds flying, swan and everything. I see you guys doing that. Maybe you love having a family, you love commitment, but you chose the wrong person. Because choosing a wrong person is also making you learn a lesson about life. It is also making you understand that sometimes choosing wrong is actually important for choosing the right. राइट, अगर रॉन्ग चीज़ें चूज़ ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा राइट और रॉन्ग की डिफरेंस कहाँ पे हो रही है. दैट्स व्हाट आई सी. लेट्स सी द अदर कार्ड. फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, रेस्ट एंड रिजुविनेशन. ऑफ कोर्स आपने बहुत स्ट्रेंथ शो की है, और इन फ्यूचर इसके लिए आपको बहुत आप बहुत एक्शन टेकिंग इंसान हो. आप चीज़ें डिले करना नहीं पसंद करते, आप तुरंत ही एक्शन लेना पसंद करते हो. आपको कोई अगर काम मिलता है आप उसको डिले नहीं करते हो, आप हाथ का काम हाथ पे कर लेते हो. और मुझे लगता है आप बहुत हार्ड वर्किंग भी हो. यू लाइक वर्किंग, यू आर अ वर्क फ्रीक, वर्कोहॉलिक पर्सन. बट जस्ट बिकॉज देखिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, व्हाट आई सेड, you had lack of money in either now or in your past. You had lack of money, and just because you worked so hard, you took action whenever it is needed. You are a very hard working person, I can clearly see that. आपने तुरंत ही एक्शंस लिए, आपने तुरंत ही काम किया, और you always, you never sat down and कोई इंसान होता है कि घर पे बैठ के खाली अपने लक को, खाली अपने भाग्य का कोसता है. आप वैसा इंसान नहीं हो. आपने काम भी किया और विश्वास भी रखी कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा. एंड दैट इज़ वाई यू विल गेट so much my dear, in terms of love, emotions and finance, that you never had to work this hard. You never had to be so harsh with yourself and work 24/7, because now you will get the rest and rejuvenation, the peace that you seek in your future. And your future self wants you to know that you are working hard right now. Yes, you have to go through all of this. You have to show your strength so that you can have this beautiful peaceful life in future. You can have this beautiful peaceful family, this abundance, this all material stuff, luxurious stuff, and all
that sukoon that you get. At the end of the day, that breathe of fresh air that you take with the peace in your heart, tranquility, all that you will get in future. And that is why you have to work so hard. You have to make your finances right. I see बचपन से ही आपके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिए जाए है, या तो ऑलरेडी है आपके ऊपर या तो दी जाएगी. तो yes, sometimes you need to rejuvenate and rest, and just because you work so hard, universe can see that, and all your hard work is never in vain. आपको भी ये पता है, right? And you know that someday you are gonna make it, right? Pile number 3, you are gonna make it, and I can clearly see how strong you are. Let's see, Dolomite. Have you wanted to do something creative? Are you feeling artistic? Let your inspirations flow and generate your insight into manifest reality. It doesn't matter what it is. It could be a nice meal, a pretty garden, an amazing photograph, or some sewing project. Regardless, now is the time to produce it. It will bring you fulfillment and purpose. Yes. अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत आर्टिस्टिक हो, या तो कुछ छोटा आर्टिस्टिक बिजनेस, या तो कुछ भी छोटा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, दैट विल ग्रो इनटू समथिंग बिग. आई टेल यू, कोई भी अगर आपकी हॉबी है, कोई भी अगर आपके आर्टिस्टिक टैलेंट है, और या तो कुछ भी जहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिविटी इंक्लूड करता है और आपको वो स्टार्ट करनी है. येस, मे बी यू डोंट हैव मच रिसोर्सेज, बट स्टार्ट इवन विथ व्हाट आई से, start with whatever you have, no matter how little it is. Start with that. Don't delay. Take action and start with that little creativity inside of you, and that will bring you something so beautiful that you will never expect, and that I clearly see. क्योंकि यही आपको फुलफिलमेंट देगी. अगर आपके अंदर कोई आइडिया है, या तो कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, या तो आप कुछ करना चाहते हो उसको लेके, कोई बिजनेस है, कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे बहुत सारा आपकी क्रिएटिविटी बहुत इन्वॉल्व है, वो काम करने में बिल्कुल झिझक ना ले. अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपको बहुत आर्टिस्टिक सा फील हो रहा है, आपको कुछ करनी है उस चीज़ को लेके, ज़रूर कीजिए, क्योंकि दैट इज़ योर लाइफ पर्पस माय डियर. दैट विल ब्रिंग यू ऑल द फुलफिलमेंट इन द वर्ल्ड दैट यू हैव आस्क्ड फॉर all these years. Okay, so that's what I see for you guys, and this was a lovely reading, and I'll see you on my next video. Bye.